ಮೂರರ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ NDA ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಬೇಕು ಮಂಡಿಸಬಾರದು ಅಂತ. 333 ಜನ ಇದ್ದರು. ಬಿಲ್ನ ಪರ 207, ಬಿಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ 126. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸುವುದು ಅಂತಾಯಿತು. 15 ತಾಸು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಓಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಟಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಮತಗಳು NDA ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವ. BJP ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಂತೂ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. NDA ಟೋಟಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದು 293. 540 ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ. 540ರ 2/3 ಅಂದರೆ 360. ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇರೋದು 293. ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತಾರೆ 360? ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು? 67 ಸಂಸದರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾರೆ. INDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಹತ್ರ 234 ಇದೆ. ಇತರೆ 27 ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದು ಅವರು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಯಸಿದರು, ಕೇಳಿದರು. ಆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಡದೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತುಕೊಂಡರೆ ಸೋಲಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತೆವು ಅಂತ ಕೂಡ ಜನರಿಂದ ಬಯಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗವೊಂದನ್ನು ವಿಪಕ್ಷಗಳವರು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸೋದು, ಮತಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು, ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಮತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಜರು ಅವರಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ, NDAದವರಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಓಟ್ ಹಾಕತ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ 2/3 ಇಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ 2/3 ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ 163 ಬೇಕು 2/3 ಅಂದರೆ. 245 ಇದೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತು. NDA ಇರೋದು 134, INDA 74 ಇದೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳವರು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಇದನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಮಿಳುನಾಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋದಪ್ಪ, 33% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ, ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्र के जीवन में कुछ महत्वपूर्ण पल आते हैं और उस समय की समाज की मनस्थिति और नेतृत्व की क्षमता उस पल को कैप्चर करके एक राष्ट्र की अमानत बना देती है। मैं समझता हूं कि भारत के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में ये वैसे ही पल है। आवश्यकता तो ये थी कि 25-30 साल पहले जब से विचार सामने आया, आवश्यकता महसूस हुई और मैंने प्रारंभ में कहा है कि हम सब भाग्यवान हैं कि हमें ऐसे महत्वपूर्ण और देश की आधी आबादी को इस राष्ट्र निर्माण की नीति निर्धारण प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने का सौभाग्य मिल रहा है। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य है और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी माननीय सांसद, मैं इधर उधर की आज बात करना नहीं चाहता हूं, हम सभी सांसद इस महत्वपूर्ण अवसर को जाने न दें। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की है, हर बार चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है। लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है।
लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस सदन में, इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नीयत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। ಇದೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಇದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಇದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ 2010ರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे उन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां हैं, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि ये किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। ये देश के लोकतंत्र के पक्ष में जाएगा, देश के सामूहिक निर्णय शक्ति के पक्ष में जाएगा और हम सब उसके यश के हकदार होंगे। न ट्रेजरी बैंक उसका हकदार रहेगा, न मोदी उसका हकदार रहेगा, यहां बैठे हुए सब हकदार रहेंगे। और इसलिए जिन लोगों को इसमें राजनीति की बू आ रही है, मैं चाहूंगा कि वो खुद के परिणामों को पिछले 30 साल में देख ले। फायदा उनका भी इसी में रास्ता दिखाता हूं। इसी में फायदा है कि जो नुकसान हो रहा है उससे बच जाओगे। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। 2010 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने का फिर से प्रयास किया। राज्यसभा में इसे पारित भी कराया, लेकिन लोकसभा में आम सहमति नहीं बन पाई। ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ.